Hope somebody is listening. Hi guys, welcome back to another episode of Terrible Ruchi. The third episode of Terrible Ruchi. I got him so that I feel someone is there with me while I'm just talking to myself, and I hope he's listening. So the first quote which I said, I hope somebody is listening. It's a book called Radio Silence. It's about a podcast, and that inspired me to start my own podcast. So please read that book. I think it's available everywhere. It's called The Radio Silence. So yeah, hi guys, how are you? Are you doing good? How was your January? I hope it went well. The first thing I just scrolled through it in a positive way. So this episode was gonna. First of all, this episode could be anything. एक तो ये Valentine's week के आसपास आ रहा है और you can feel how relatable I am. Oh my god. So yeah, I think I can relate with almost every people here in the Valentine's. Just seeing my podcast. Hi guys, same here. So welcome. And now I'm gonna talk about first of all, if you don't follow me on Instagram, follow me on Instagram. It's Ruchi Jha. Link in the description. Or you can vote किया था on terrible career decisions. Now, career in India is deliberately decided by your birth. आप पैदा होते हो, आपके करियर डिसीजंस आपके पेरेंट्स ले लिए होते हैं, आपकी पूरी फैमिली ले चुकी होती है बाय योर बर्थ. You don't have that right. I think now the parents are pretty okay and they give that what assurance or they give that value कि चल तू decision ले ले. Otherwise, when I was growing up, yes, my decisions were mostly taken, but I have broke almost all of them. I broke a lot of stereotypes, guys. क्योंकि मैं बहुत बुरी थी पढ़ाई में. So I was born, first of all, let me start from the very beginning. Hi, my name is Ruchi. Okay, for the people who have come first time to the channel, hi, this is Ruchi, and I was born after 20 years of my parents' marriage. Yes, मैं 20 साल के बाद ऐसी औलाद पैदा हुई है. So their expectations, their career decisions were much more from me than anyone else. बहुत ज़्यादा था. They had, but they were more happy that I am here. उन्हें लगा था कि चलो कोई बच्चा तो आया, कोई मम्मी पापा तो बोलेगा. But definitely they had different dreams. And while I was growing up, I was terrible, terrible at study. इतनी बुरी थी that I was I never scored good marks till the time I have pressured her. मैं वो बच्ची थी क्लास की जिसको वो क्लास में नहीं बोलते कि यार इसके पास दिमाग बहुत है बस ये पढ़ती नहीं है. तो मैं वैसी थी और मैंने बहुत सारी अपने घर वालों को बहुत बार चूतिया बनाने की कोशिश की है. कॉपियाँ छुपाई है, नंबरें बदले हैं, टीचर्स के साइन किए हैं, 10 नंबर को 100 नंबर बनाया है, टीचर कॉपी नहीं देती, झूठ बोले. एंड इतनी टेरिबल थी मैं झूठ बोलने में भी दैट कि मैं पकड़ाई भी बहुत हूँ. तो एक पॉइंट तक आई थिंक क्लास 8 तक मैंने ड्रामा किया था. मैंने बिकॉज मेरे को बहुत डर लगता था, उनके बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थे मुझसे एंड आई वाज अ टेरिबल किड. मुझे पढ़ने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता था और मैं ये भी नहीं थी कि मैं बहुत मस्ती करती थी. आई थिंक क्लास 8 तक आई वाज अलग कॉम्बिनेशन एंड गठबंधन ऑफ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट. मुझे बहुत मज़ा आता था अपने दोस्तों के साथ चिल करने में. और अगर मैं अकेले बैठ के बुक खोल के बैठी थी मैं अपने ही दुनिया में. आई वॉज ऑलवेज अ डे ड्रीमर. तो मैं कुछ ना कुछ सोचते ही रहती थी. वो कुछ भी हो सकता था उस टाइम पे, कुछ भी था. आई आई स्टिल फील कि वो सारी चॉइस अगर मैं आपको दिखाऊंगी तो यू फील कि पागल थी क्या. हाँ मैं थी. तो मैं बहुत ही वैसी सी बच्ची थी. तो मैंने ऐसे नंबरें छुपाए, अब नंबरें बदले हैं रिपोर्ट कार्ड्स में, ग्रेड मतलब जितना एक लड़क एक्सटेंड कर सकती है ना एक लड़की अपने घर वालों को चूतिया बनाने के लिए, वो सब किया है. बट माई डैड इज अ जेंटलमैन एंड ऑल्सो 007. उनको सब पता चल जाता है, उनसे छुपाना बहुत मुश्किल है. और मेरे घर वाले, मेरे मम्मी पापा दोनों बहुत स्मार्ट है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट है और बहुत ज़्यादा केयरिंग, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं. तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट थे वो. मेरे पापा स्पेशली बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, उनसे कुछ भी छुपाना नामुमकिन है. सो आई यूज एंड आई गॉट कॉट लाइक बहुत बार, बहुत मार खाई है, बहुत परेशान हुए. तो क्लास 8 9 तक आते आते उन्होंने मेरे से ना भरोसा उठा दिया था. 8th के बाद जब इतनी कांड मैंने कर दिया था कि 8th के बाद मेरे मम्मी पापा के दिमाग से मेरे पे लेके भरोसा उठ चुका था कि ये कुछ नहीं कर सकती, इसको हम कुछ नहीं दिलाएँगे. बट बट थैंकफुली माय कज़िन्स, आई हेट द पीपल हू अराउंड यू हू टेक योर डिसीजंस. दे शुड नॉट. और उस चीज़ पे डिपेंड भी नहीं करना चाहिए.
सो नाउ 8th स्टैंडर्ड में ये सब होने के बाद आई फेल्ट वेरी बैड फॉर माई फैमिली। और 9th स्टैंडर्ड में आई गॉट सीरियस इन द सेंस कि मैं इतनी सीरियस हो गई कि मैं इस चीज़ पे हो गई, ठीक है मैं झूठ नहीं बोलूँगी, जो होगा देखा जाएगा। आई वोंट डू एनी रॉन्ग अटेम्प्ट फॉर देम टू फूल माई पेरेंट्स, ये मैंने डिसाइड कर लिया था। तो 9th में मैंने खुद से पढ़ाई की, फिर मेरे बहुत गंदे नंबर आए एंड दे गॉट द रीजन मैं क्यों क्यों छिपाती थी यार, क्योंकि मेरे नंबर नहीं आते थे। एंड आई वाज सो एंड माय फादर इज अ मैकेनिकल इंजीनियर, ही हैज हाई होप्स। उन्हें लगता था मैं सो माय डैड आई थिंक आई डोंट नो, बट ये जो कॉन्सेप्ट होता है ना इंडिया में कि लड़की पैदा हुई तो डॉक्टर बनेंगे, ऑलमोस्ट अ 3 इडियट कॉन्सेप्ट मेरे घर पे भी बहुत टाइम तक चला था कि अगर एक लड़की हुई है इसको तो हम डॉक्टर बनाएंगे। उसको कुत्ते से भी डर लगता है, वो खून नहीं देख पा रही है, कैसे बनाओगे डॉक्टर। मेरे को इतना डर लगता था, मुझे बहुत डर लगता था कुत्तों से। मैं थोड़ा कुत्ता भौंक देता था, मेरी अभी भी गांड पिट जाती है। तो बहुत वैसा डर लगता था, बट दे थॉट कि नहीं ये ना बन सकती है। मेरे साइंस में 6-7 नंबर नहीं आ रहे। तो यश राठी का एक जोक है विच आई रियली लव। वो जोक है कि वो कहता है कि पापा ने ना मेरी ट्यूशन लगा दी 12th क्लास में आईआईटी की। बेटा बेटा 11th में प्लीज बोल के पास हुआ है। तो दैट वाज मी कि मेरे साथ कुछ, आप किस बात के होप्स रख रहे हो। So yeah, my parents wanted me to be a doctor and I wanted to be an actor. And before actor, I was a huge Varun Dhawan fan. बहुत बड़ी वरुण धवन की फैन थी। And I didn't know how to meet him. मुझे नहीं पता था उस टाइम रास्ते क्या होते हैं मिलने के। So I thought the only way I could meet him is through actors। ये एक ऑप्शन है जिसके वजह से मैं उनसे मिल सकती हूँ। तो वो मेरा तरीका था उनसे मिलने का। बट आई डिडंट नो हाउ टू हैपन दैट। तो मेरे को जब घर वाले बोलते थे ना डॉक्टर 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 डॉक्टर, बायो ले लेना, तो ट्रस्ट मी 10th के बोर्ड्स तक भी मुझे नहीं पता था मुझे क्या लेना है। बट बायो 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 बहुत होने लगा, बहुत ज़्यादा बायो बायो होने लगा। तो वन फाइन डे माई मॉम रियलाइज कि इससे बायो तो नहीं हो पाएगा, ये इसके लायक नहीं है क्योंकि बहुत डरती है, इससे नहीं हो पाएगा, इट्स इम्पॉसिबल। और मुझे भगवान की दया है, भगवान ने रहम खा ली मुझ पे कि मुझसे बायो लेना नहीं पड़ा। एंड देन माई डैड, ये मुझे नहीं पता था कि मेरे पापा के दिमाग में ऑलरेडी था कि पीसीबी नहीं तो पीसीएम, क्योंकि मेरे पापा एक इंजीनियर थे। एंड आई टेल यू गुड थिंग एंड बैड थिंग अबाउट योर फादर बीइंग अ फेमिनिस्ट, दैट यस आपको घर में कभी रियलाइज नहीं होगा कि आपको लड़की की तरह रखा जा रहा है या आपको ऐसी कोई चीज़ है जो लड़की को दी जा रही है और लड़के को मिल रही है, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। अगर मेरे घर में 9 बजे का कर्फ्यू टाइम मेरा था तो मेरे भाई का भी था, उसको इसकी भी बैंड हो जाते थे मेरे घर वाले। तो वो चीज़ थी, दैट वाज गुड थिंग अबाउट माय फादर। अब द बैड थिंग इज कि वो मुझे भी इंजीनियर बनाना चाहते थे। उन्हें लगा कि इसको भी इंजीनियर बना लूंगा मैं। उनको लगा कि साइंस, और मेरा ना मेरे पापा का ट्रांसफर जॉब था हमेशा से, तो वो इधर से उधर 2-3 साल पे निपटते रहते थे। तो तब मैं डीपीएस दुर्ग में थी। हाँ, द स्कूल आई टॉक्ड अबाउट इन द लास्ट वीडियो, लास्ट एपिसोड, नहीं देखा तो जाके देख लो। तो उस स्कूल में थी और फिर मैं वहाँ से बोकारो आ गई थी। बोकारो वाज अ स्टडी हब, मतलब कोटा बिहार झारखंड का। हाँ, यहाँ पे भी सारे बच्चे आते हैं बिहार से झारखंड से पढ़ने के लिए 11th-12th के लिए। यहाँ से बहुत आईआईटीज निकले थे, निकलते थे, काफ़ी निकल जाते थे बहुत सारे, दैट इज़ अ ट्रूथ। तो पापा बोकारो आ गए, पापा ने अपना ट्रांसफर बोकारो ले लिया ताकि मैं अपना 11th-12th यहाँ से कर पाऊँ। और यहाँ पे ना अलग ही कॉम्पिटिशन है, बोकारो में अलग ही कॉम्पिटिशन है। बोकारो में 2 स्कूल था, चिन्मया और डीपीएस, व्हिच वाज फेमस कि यार इसमें जिन बच्चों का हो गया ना वो तो आईआईटी निकाल ही लेंगे। और वो बोर्ड रिजल्ट से पहले और बोर्ड एग्जाम्स के बाद खुद का टेस्ट रखते थे। और वो टेस्ट जो कैप्चर कर लेता था यानी कंप्लीट कर लेता था उसको ही वो अपने साथ देते थे, बिकॉज दे थॉट कि यही आईआईटीएंस है। तो उस टेस्ट के बेसिस पे चाहे आप 99% ले आओ बोर्ड्स में, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका एग्जाम आपने क्लियर नहीं किया मतलब नहीं किया, इट्स जस्ट लाइक आईआईटी का छोटा वर्जन समझते थे। और ऐसे ऑलमोस्ट बोकारो के सारे स्कूल करते थे, बट चिन्मय और डीपीएस बहुत ज़्यादा फेमस था। सो माई डैड वॉज एक्साइटेड एंड येट प्राउड कि मेरी बेटी तो खा ही लेगी, पता नहीं किस चीज़ की गम था उन्हें, किस चीज़ का गर्व था उन्हें। एंड आई वेंट एंड गिव द एग्जाम। मेरा दोनों में सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरे पापा डिप्रेस हो गए कि ये इतनी बुरी कैसे हो सकती है यार। मैं अभी आपको हंस के बता रही हूँ, बट वो टाइम मेरे लिए हंसने वाला नहीं था। आई यूज्ड टू फील वेरी बैड, टेरिबली बैड कि यार मैं कितनी बुरी हूँ यार, इतनी बुरी कैसे हो सकती हूँ। मैंने दोनों स्कूल का एग्जाम, एंड दैट वाज टफ, मेरे लिए टफ था यार। मैंने बहुत कोशिश की थी, मुझसे नहीं निकला था। वो नहीं निकला, मेरे घर पे एकदम
आई थिंक इसके बारे में मैं थोड़ी सी बात कर चुकी हूँ फर्स्ट एपिसोड में, बट हाँ मेरा नहीं निकला, मेरे घर पे एकदम मातम महल गया। और ना मेरे कजन, और मेरा ना 10th में आपको बताती हूँ, मेरे सीजीपीए आया था 8.6 सीजीपीए, विच वॉज नॉट बैड, लेकिन मेरे कजन्स के बहुत ज्यादा आते थे जिन्होंने कुछ खास नहीं उखाड़ा लाइफ में, ठीक है। उतना ज्यादा लाके भी आई स्टिल फील प्राउड। बट इतने कंपैरिजन होने लग जाता था मेरे घर पे, इतना ज्यादा कंपैरिजन होता था मेरे घर पे कि मुझे कुछ समझ नहीं आता था। सारे कजन्स मेरे आसपास वाले सबका, इसको तो फोन आता था रात सुबह सुबह की, अरे इसका रिजल्ट आ गया, आपको पता है 9 सीजीपीए। अरे मैं, मेरे पे प्रेशर बन रहा है ना यार, वो तो देखो। तो अरे बहुत ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप चेंज हो रहे हैं, ग्रुप में वर्सेस जो भी मेरे इक्वल कजन थे उनके, जबरदस्ती का, किसी को कोई लेना देना नहीं है अब, ना ही उन मार्क्स से ना ही उस रिजल्ट से, बट बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो गया था। और अब उतना प्रेशर क्रिएट करने के बाद मेरे 8.6 आए थे, तो तुम सोचो मैं कितना ही पढ़ती होंगी यार। But yeah, 8.6 आया, which was not bad. And one of my cousin came to my house on the day of the result, the next day of the result, and he came out and he said कि सीबीएसई में अगर 9.8 से सीजीपीए आया, के नीचे अगर 9.8 के नीचे अगर कोई सीजीपीए आया, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है उसका, फिर तो बच्चा बहुत बेकार है। अच्छा से मतलब क्या, मैं आई थिंक द ओनली टाइम आई वेंट इनटू डिप्रेशन, प्रॉपर डिप्रेशन वाज दैट टाइम, कि मेरे को अपनी वल्नरेबिलिटी या अपनी वल्नरेबिलिटी सॉरी अपनी कैपेबिलिटी बहुत कम, यार मेरा बहुत बुरा है यार ये ग्रामर, मेरे को कैट दे देना चाहिए था। हाँ मेरी कंपैटिव क्या, आह! मेरी कैपेबिलिटी, सॉरी मेरी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है क्या, मतलब मैं इतनी बुरी हूँ। आई थिंक दैट वाज़ द, मैं रोना नहीं चाहती अभी, बट दैट वाज़ द वर्स्ट फेयर। माय माय फादर थॉट कि फिर जाके उनका दिमाग खटका कि इनको ना कॉमर्स, इसको कॉमर्स दिला देते हैं। हाँ, इसको कॉमर्स दिला देते हैं। आई थिंक कि अब ये तो हो नहीं पा रहा। फिर मैंने एक वहाँ पे एक बहुत फेमस स्कूल था कॉलेज के लिए, कॉमर्स के लिए, तो मैंने वहाँ पे अपना कॉमर्स का एग्जाम दिया एंड वो निकल गया, कॉमर्स था, और उन्होंने मेरे को मैथ्स भी नहीं दिलाया। उन्होंने मुझे मैथ्स भी नहीं दिलाया, कि बस तू कॉमर्स ही ले बस। तो कॉमर्स विद आईपी था, एंड yeah, that's how I chose commerce, मतलब that was not my first choice, it just ended up. Thank you so much. And this is Ruchi signing off. See you in the next podcast.